Tanu will going to start within 5 more minutes. Okay. Sure, ma'am.
Hello, good afternoon, everybody. Class started? Yes, there is just some issue in my laptop. I'll start within 2 minutes. Give me just 2 minutes. Okay, ma'am. Thank you. Yes, hello. Am I audible to you? Hello? Am I audible to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. And is my screen visible to you? Yeah. Till now, no. No. Let me check. Is it visible now? Is it visible now? Is it visible now? Sorry. Okay, is it visible clearly? Yes, ma'am. Okay, done. Okay. So we'll start with third unit, okay, that deals with the air pollution. Wherever there is a term air, then we're going to talk about the atmosphere. Already we have discussed brief related to the atmosphere, but still a quick recap I'm going to give you so that it will give you a very clear idea. So atmosphere, it is nothing but a, what we can say, anybody can explain this, what is atmosphere? I have already taught you this topic in very depth in previous subjects. So I'm expecting someone to answer. क्या होता है एटमॉस्फेयर? बहुत इजी है. अरे, atmosphere is nothing but a what we can say, a layer just touched to the surface of
Earth. That is nothing but an atmosphere. Okay, it is generally composed of the what we can say gases, atmospheric gases. That is nothing but the air. Okay, some particles, mixture of gases that surround the Earth. That is nothing but atmosphere. Already we have discussed this definition, but see, सभी गैसों का मिक्सचर जो है ना, जो अर्थ के सरफेस से टच है अप टू द 16 किलोमीटर, है ना, ग्राउंड से लेकर तो 16 किलोमीटर हाइट तक हम लोग ऐसा समझते हैं कि एटमॉस्फेयर है। और गैसेस के कंपोजिशन अलग अलग है। हर एक एयर में अगर आप देखो कंस्टिट्यूएंट होंगे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड other heavy other what we can say gases जो स्टेबल एक्सर्ट क्या कहेंगे, नियॉन, हेलियम, ये सारी बाकी की गैसेस भी वहां पर रहेगी। ओके, इनर्ट गैसेस, सॉरी इनर्ट गैसेस भी वहां पर रहेगी। सी एनवेलप ऑफ द गैसेस दैट सराउंड द प्लैनेट, we this earth planet is wrapped with the envelope known as the atmosphere. Okay, atmosphere is a mixture of atom molecules and of the different kinds. Different atoms, molecules are also present in the atmosphere because of human activity. Not only the gases, but also some dust, smoke, particles are present. Okay, so that is nothing that comes in a part of the pollution. Okay, air pollution. But normally atmosphere के इसमें क्या होना चाहिए? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, carbon dioxide or some amount of inert gases. These gases are constantly added and removed because of animal and human breath in out. Plant produces food as well as its transpiration, its respiration, then volcano eruption, then automobiles will going to changes the gases concentration. Now coming towards the composition of atmosphere. Atmosphere में क्या होगा? Majorly the nitrogen. Atmosphere cover up majorly with the help with the nitrogen gas, that is a 78%. ओके, ये सबसे ज्यादा इसलिए हमारे अर्थ में क्योंकि पहले बहुत ज्यादा वोल्केनिक इरप्शन हुए थे, तो नाइट्रोजन गैस से पूरा प्लैनेट भर गया। देन 21% ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा हमें देते हैं वो है प्लांट्स। ओके, प्लांट सबसे ज्यादा ऑक्सीजन दे देते हैं। अदर गैसेस लाइक एरोगॉन विच इज अ इनर्ट गैस, स्टेबलाइज फॉर्म में। Then carbon dioxide, methane, water vapor because of evaporation of the water body, surface water bodies like ocean, river, streams, है ना, lake, pond, इससे जितना भी वेपराइजेशन होगा पानी का वो वाटर वेपर भी एयर में प्रेजेंट है। पर इन सब चीजों का, ये जो इनर्ट गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, वाटर वेपर है, विच आर हार्मफुल, they are present less than 1%. Okay, than the other gases. ये 1% से नीचे, इसीलिए ये जो प्लैनेट है अर्थ वो सरवाइव करने के लिए है ना। ये सब हमने पहले भी लेक्चर में देखा था। So the composition of atmosphere. Atmosphere contains atmospheric dust, mainly soil particles, some amount of salt, ash from the fire, volcanic ash, particulate matter from the combustion, skin, hair, bits of clothing, pollen, bacteria, viruses, aerosols. There are lots of things present into the atmosphere, but these are not in the composition of, क्या कहेंगे हम, naturally नहीं है ये सब, क्या हुए, एक तरह से pollutant हुए। We'll discuss in depth the atmospheric pollutant or air pollutant. Now moving towards the concept related to the air pollution. क्या होगा air pollution? जैसे कि हमने पहले देखा था, pollution के मायने क्या हो, which is harmful and hazardous to the health. Okay, which affect the health of the any individual living or नॉन लिविंग। जो भी हार्मफुल रहेगा, हजार्डस रहेगा लिविंग के लिए, नॉन लिविंग के लिए, उसे हम पोल्यूशन के टर्मिनोलॉजी में कंसीडर करेंगे। सेम थिंग एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन इज अ कंटेमिनेशन ऑफ द इंडोर और आउटडोर एटमॉस्फेयर by harmful chemical, physical or biological agents such as gases, particle and smoke that alter the natural composition of the atmosphere.
ओके, जो एटमॉस्फेयर का मेजरली द पॉइंट इज रिलेटेड टू द alteration of the composition of the atmosphere. That's why I have shown you the natural composition of atmosphere in a previous slide. Okay, naturally नाइट्रोजन होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, नाइट्रोजन हाई अमाउंट में, ऑक्सीजन 21% एंड अदर गैसेस 1%. बट क्या हो रहा है, उनका परसेंटेज चेंज होते जा रहा है. कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ रहा है, ऑक्सीजन का परसेंटेज कम हो रहा है ना. तो एक तो क्वालिटी तो क्या कहेंगे, क्वालिटी तो डाइल्यूट हो ही रही है एयर की. जितना भी अच्छी क्वालिटी एयर की वो डाइल्यूट हो रही है इन टर्म्स ऑफ हार्मफुल फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स. सेम थिंग क्वांटिटी भी चेंज हो रही है ना, एयर की कंपोजिशन भी चेंज हो रहा है एयर का. सो बोथ कमिंग टुगेदर एंड गिव द give new terminology that is air pollution. वो क्या दोनों भी क्वालिटी और क्वांटिटी खराब हो रही है एयर की, तो नहीं, एक तरह से पोल्यूशन एक नया बन रहा है ना. It poses significant health risks to the human animal ecosystem, contributing to diseases like asthma, cancer, heart disease and many more. Stresses, anxiety, बहुत कुछ और एलर्जी, इतने सारे डिसीजेस हो रहे हैं एयर पोल्यूशन के. नॉट ओनली फॉर द ह्यूमन बट ऑल्सो द अदर एनिमल एज वेल एज प्लांट इकोसिस्टम. प्लांट में भी देखो आप पीलापन आ रहा है ना, बहुत जल्दी. जब प्लांट में सीजन रहता है ना, तब उसके पत्ते हमेशा ग्रीन रहते हैं, जैसे कि अभी ये जो टाइम चल रहा है. बट क्या हो रहा है अगर आप देखो तो अल्ट्रेशन हो रहा है ना, सभी गैसेस की क्वांटिटी का. जस्ट गिव मी 1 more minute, आई विल सी. ओके, जस्ट गिव मी 1 more minute. So कमिंग टुवर्ड्स कि कितना ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं, है ना. जितने भी हार्मफुल एयर पोल्यूटेंट्स है, वो एयर, नेचुरल एयर की कंपोजिशन को चेंज कर रहे हैं, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा हेल्थ हजार्ड्स हो रहे हैं टू द ह्यूमन, टू द एनिमल एंड टू द इकोसिस्टम एज वेल एज. Now the sources of air pollution. Okay, coming towards the sources of air pollution. Air pollution originates from natural processes like volcanic eruption, wildfires, and dust storms, as well as human-made activity, including fossil fuel consumption, industrial processes, transportation, and agricultural practices. See, there are natural sources are also available for the air pollution and some anthropogenic sources. Anthropogenic sources उसे कहेंगे जो human activity की वजह से हो रहे हैं, है ना. नेचुरल में आ गया आपका वोल्केनिक इरप्शन, जंगल में आग लग रही है ना, बवंडर उठ रहे हैं, स्टॉर्म्स आ रहे हैं, साइक्लोन्स आ रहे हैं, ये सब चीजें नेचुरल सोर्सेस हो गई. और ह्यूमन की तो पूछना ही नहीं पड़ता, गिनती लगा लो आप, जहाँ फॉसिल फ्यूल का कंजम्पशन हो रहा है, जहाँ इंडस्ट्रियल प्रोसेस, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड्स हो रहे हैं, है ना. तो ये सारे एयर पोल्यूशन के सोर्सेस हुए. Natural sources often releases as soot and gases, while man-made sources predominantly emit pollutants like carbon dioxide, nitrogen oxides, sulfur oxides, and particulate matter, which is hazardous. Natural sources of air pollutant इतने harmful नहीं है जितने की anthropogenic है ना, man-made.
वो ज्यादा हार्मफुल है. We'll see one by one natural sources of the air pollution. These occur without human intervention, often releasing significant amount of pollutant into the atmosphere. Obviously, naturally उसमें कोई human का लेना देना नहीं है. ठीक है. Sorry. So first of all, volcanic eruption. जब ज्वालामुखी फटेगा ऑब्वियसली ऐश तो निकलना ही निकलना है. आग के बाद में राख तो होती ही होती है ना. तो ash will be the major pollutant contributed due to volcanic eruption. Then sulfur, chlorine, various volcanic gases. It depends वो volcanic eruption कहाँ हो रहा है ना. जैसे अगर बसाल्ट टेक्टोनिक प्लेट से हो रहा है, जो टेक्टोनिक प्लेट में सबसे ज्यादा बसाल्ट है, तो वहां पे सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का इमिशन होगा, सल्फर का होगा. अगर कोई टेक्टोनिक प्लेट में हाईली आयरन ऑक्साइड्स है ना, आयरन है वहां पर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में, और वहां से वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, तो आयरन ऑक्साइड्स आपको एटमॉस्फेयर में भी देखने के लिए मिलेंगे, है ना. तो इट डिपेंड्स ऑन टू द प्लेसेस वेयर दिस एक्शन इज गोइंग टू बी हैपन. Okay, but majorly it releases ash, sulfur, chlorine, and other gases. Now, wildfire and grass fires, both. अभी रिसेंटली लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया में वाइल्ड फायर भी हुई थी, और ग्रास फायर, ग्रास इकोसिस्टम जो था वो भी डैमेज हुआ था, है ना. तो फायर से ऑब्वियसली पार्शियली कंबशन हो जा है, मैक्सिममली पार्शियल कंबशन होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, स्मोक निकलेगा, एंड देन पर्टिकुलेट मैटर यू कैन कॉल्ड इट एज अ, क्या कहेंगे, आम भाषा में डस्ट पार्टिकल होते हैं, बट उसके साइज वेरी करते हैं ना. 2.5, देन 10 माइक्रोन, ऐसे अलग अलग पर्टिकुलर मैटर होते हैं. PM 2.5, PM 10. ओके, सॉरी. सो वाइल्डफायर से मेजरली स्मोक, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होते हैं, देन पर्टिकुलेट मैटर इन फॉर्म ऑफ द एश. नाउ विंड ब्लो डस्ट, majorly this happens where the desert area or desert ecosystem are there. ठीक है. जैसे कि सॉइल, और इसमें कौन कौन से पोल्यूटेंट आएंगे, सॉइल, सैंड फ्रॉम द ड्राई एंड एरिड एरियाज लाइक सहारा और राजस्थान, और द डेजर्ट कवर बाय द राजस्थान. जब हवा चलेगी तो ऑब्वियसली वो अपने साथ डस्ट भी उड़ाएगी, है ना. जस्ट लाइक दैट फिनोमिना. नाउ बायोलॉजिकल डिके, अगर कोई मर गया, जैसे कि कोई प्लांट डेथ हो गया, कोई एनिमल डेथ हो गई, तो उसको ऑब्वियसली डिकम्पोज कौन कर रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंड दे आर रिलीजिंग गैसेस टू द एटमॉस्फेयर, राइट. एंड दैट गैस विल बी मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना. इस तरीके के गैसेस वो रिलीज करेंगे, लाइक बैक्टीरिया डिके ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर रिलीजिंग मीथेन. ये प्रोसेस हमने डिटेल में समझी है अंडर द हेडिंग ऑफ बायोरिमेडिएशन इन अ प्रीवियस सब्जेक्ट. ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, दैट इज अ सी स्प्रे. ठीक है, रिलीजेस साल्ट पर्टिकुलेट मैटर, साल्ट पार्टिकल्स इनटू द एयर. जब लहरें अपने आप को ऊंचा उठाती है ना, नॉट ओनली दे आर इमिटिंग द ह्यूमिडिटी टू द एटमॉस्फेयर, बट ऑल्सो रिलीजेस सम अमाउंट ऑफ साल्ट पार्टिकल इन दैट, है ना. तो कहते नहीं, यहाँ की हवा भी नमकीन लगती है. कच्छ में चले जाओ गुजरात के, तो वहां पे ऐसे लगते हैं नमक है जैसे हवा में. तो इस तरीके से ऐसा मिक्सचर होता है. Now the volcanic activity that releases gas and ashes. See, volcanic eruption is different thing and volcanic activity is a different. Eruption में पूरा अंदर का ज्वाला बाहर निकलता है. That lava is coming from the core of earth to the surface. Volcanic activity means movement of the tectonic plate, some kind of earthquake. That is nothing but a volcanic. Volcano से ही हो रही है, but बाहर नहीं आ रहा है, eruption नहीं हो रहा है.
So it releases gases and ash. Then pollen grains, that natural allergens released by the plants. Pollen grain को सबको पता है, पराग बोलते हैं ना जनरली हम लोग, फूलों के अंदर जो होता है पोलन्स, by which plant पोलन ग्रेन्स की वजह से सीड फॉर्म होते हैं, रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में. तो पोलन ग्रेन्स कई क्या कहेंगे उसको, कई सारे मीडियम है जहाँ से पोलन ग्रेन स्प्रेड होता है एटमॉस्फेयर में, लाइक हनी बीज, बर्ड्स, इंसेक्ट्स. और वो नेचुरल एलर्जेंस का भी क्या कहते हैं, उससे एलर्जी बहुत ज्यादा होती है, नेचुरल एजेंट है एलर्जी कॉजिंग. नाउ द मैन-मेड और एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेस ऑफ द एयर पोल्यूशन. अब इसमें कंप्लीटली आ जाएगा आपका जो भी ह्यूमन एक्टिविटी से जो भी सोर्सेस है एयर पोल्यूशन के, ह्यूमन की वजह से कहाँ कहाँ से पोल्यूशन हो रहा है एयर का, दैट विल गोना सी. दीज आर कॉज्ड बाय द ह्यूमन एक्शन, लार्जली लिंक्ड टू द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी. सबसे ज्यादा कहाँ से होगा, जहाँ फॉसिल फ्यूल जलेंगे वहीं से होगा. वो जहाँ पे आदमी फॉसिल फ्यूल जलाएगा और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होगी, वहां पे सबसे ज्यादा आपको देखने के लिए मिलेंगे एंथ्रोपोजेनिक pollutants. Okay, so first is the transportation. No matters by which mode the one person travel from one point to the another point, whether it is by road, by plane, by airways, or by water. Everything is going to be used of fossil fuel as a, what we can say as fossil as a fuel, है ना. फॉसिल को ही वो यूज करेगी एज अ फ्यूल. ऑयल हो गया, है ना, ऑयल, पेट्रोल, डीजल, इन्हीं सबसे सारी चीजें चलती हैं जनरली, है ना. कार हो गई आपकी, प्लेन हो गए, या फिर शिप्स हो गई, ये सारी चीजें वहां पे बर्निंग होगा. और क्या होगा फिर, एटमॉस्फेयर में कार्बन मोनोऑक्साइड का परसेंटेज ज्यादा बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज ज्यादा बढ़ेगा. तो ट्रांसपोर्टेशन इज मेजर सोर्स ऑफ man-made air pollutant. Vehicles like car, truck, plane, and ship powered by petrol or diesel. Then power generation. See, thermal power plants burning coal, oil, or natural gases. Okay, not only the thermal power plant, now it is observed, now the studies are also shown that nuclear power plant also contributing some air pollutant to the atmosphere. हाँ जी, ये बहुत बड़ा अभी क्या हो गया, पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन में आ रहा है कि देश अपनी जो भी कंट्रीज है वो अपने लिए एनर्जी सोर्स बनाने के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप करते हैं. बट सम क्या कहेंगे, प्रोसेसिंग, सम मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट और प्रोसेसिंग डिफेक्ट, और समवेयर समहाउ दे आर रिलीजिंग न्यूक्लियर एक्टिव or radioactive pollutants to the atmosphere, which causes a very dangerous health hazard. So काफी ज्यादा अभी रूल्स एंड रेगुलेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट को दिया गया है कि ऐसी कोई भी चीजें मत करो. अल्टीमेटली जहाँ पे पावर प्लांट है, जैसे किसी कंट्री में, इंडिया में ही पावर प्लांट है तो वो इंडिया के लोगों को मारेगा, है ना. सो सो वो पॉइंट अभी काफी ज्यादा लीगलाइज हो गया है, इसीलिए मे बी. बट थर्मल पावर प्लांट कोल, ऑयल और नेचुरल गैसेस पे रन करते हैं, एंड दे जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी energy for the country, and which contribute the air pollutant to the atmosphere. Now industrial processes like manufacturing plant, oil refineries, and metal production or metal plating, releasing fumes, chemicals, and particulate matters to the atmosphere. ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है, ठीक है, जो कि एयर में पोल्यूटेंट ना दे या एयर पोल्यूशन ना करे. सारी जितनी भी इंडस्ट्री अभी है वो सब कंट्रीब्यूशन करते हैं. सम केसेस में सिर्फ डेयरी इंडस्ट्री लोग स्मॉल स्केल,
नॉट लार्ज स्केल जैसे कि अमूल हो गया या कोई और हो गया। स्मॉल स्केल जो डेयरी इंडस्ट्री जैसे हमारे आसपास के गाँव में छोटी छोटी जो होती है ना, वही बस वहाँ पे बस हमें एयर पोल्यूशन देखने के लिए ना के बराबर मिलता है ना। बट बाकी सारी कोई भी इंडस्ट्री ले लो, टेक्सटाइल हो, पेपर पल्प हो, ऑयल रिफाइनरीज हो, मेटल प्लेटिंग, मेटल क्लोटिंग, मेटल प्रोडक्शन, कोई भी हो, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, वो पोल्यूशन। हाइड्रोइलेक्ट्रिक सॉरी, हाइड्रोइलेक्ट्रिक इंडस्ट्री, हाइड्रोइलेक्ट्रिक इंडस्ट्री जो पानी से बिजली बनाते हैं। दैट आई डोंट नो। हाइड्रोइलेक्ट्रिक, हाइड्रोइलेक्ट्रिक जो पानी से बिजली बनाती है, हाइड्रो पावर, हाइड्रो पावर स्टेशन, राइट। सी हाइड्रो पावर स्टेशन में क्या होता है, आपकी ह्यूमिडिटी मिक्स हो जाए, पानी का कॉन्सेंट्रेट, आप देखो जहाँ पे भी क्या कहेंगे आप, हाँ मतलब एयर पोल्यूशन तो नहीं करेगी इन टर्म्स ऑफ, हाँ वहाँ पे कोई कंबशन नहीं हो रहा है, पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में मुझे नहीं लगता कोई ये होगा, क्या कहेंगे उसे, कोई पोल्यूशन होगा। इसीलिए पावर जनरेशन में सिर्फ थर्मल पावर प्लांट ही लिखा है ना। दैट हाइड्रो पावर प्लांट्स आर नॉट कंसिडर एज अ इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, है ना, वो पावर जनरेशन प्लांट्स हुए, ठीक है। तो कमिंग टूवर्ड्स नेक्स्ट, दैट इज एग्रीकल्चर एक्टिविटीज like ammonia from fertilizer and livestock and burning of the crop residue, है ना, जहाँ पे पंजाब में अभी देखते, पंजाब हरियाणा कई सारे स्टेट्स ऐसे हैं जो अपनी फसल को काटने के बाद में जलाते हैं, तो वो जो भी उससे बर्निंग की वजह से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा है, वो कंट्रीब्यूट करते हैं। पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स आर आल्सो कंट्रीब्यूटिंग एज अ एयर पोल्यूटेंट. Now the waste management, incineration and landfill burning of the solid waste. Not only the solid waste, but also the wastewater treatment. See, incineration, solid waste का कई सारी इंडस्ट्री भी कर रही है और लोकल गवर्नमेंट बॉडीज भी इंसिनरेट करती है सॉलिड वेस्ट को। इंसिनरेशन करना मतलब कंट्रोल टेम्परेचर, कंट्रोल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के अंडर में कोई भी जो वेस्ट है उसे बर्न करना। बर्निंग हो गया वहां पे तो ऑब्वियसली आपका पोल्यूशन वहां पे होना ही होना है। देन लैंडफिल्स, आज पहले के टाइम में ऐसा होता है कचरे का ढेर लगा देते थे एक ही जगह पे, आजकल उसे मॉडर्नाइज अर्बन टर्मिनोलॉजी दी गई है लैंडफिल्स, कि हम एक पहले जमीन बनाएंगे, वहां पे जीआईएस शीट लगाएंगे ताकि ऊपर जो भी कचरा है उसका लीचिंग ना हो नीचे। एंड पर जितना भी होता है लैंडफिल्स में जनरली वहाँ स्मेल, फाउल स्मेल, डिके होना शुरू हो जाता है कचरा, और है ना, anaerobic decomposition, aerobic decomposition both are simultaneously going on, and because of due to that lots of gases are coming from that landfills like methane, carbon dioxide, other oxides also. If heavy metals are present, they are also going to be degraded after some time, and they are giving some kind of oxides. So landfill is a major, क्या कहेंगे, हाईली डेंजरस स्पॉट और हाईली डेंजरस सोर्स ऑफ द एयर पोल्यूशन। इंडस्ट्री तो है, ऑटोमोबाइल्स तो है ही, बट लैंडफिल्स में हमें ये नहीं पता है ना, लैंडफिल में कौन सा कचरा डाल रहे हैं, ई वेस्ट डाल रहे हैं, कुछ भी। आप देखिए जो म्यूनिसिपैलिटी जो लैंडफिल्स बनाती है कचरा डंप करने के लिए, वहां पे कौन सा वेस्ट नहीं जाता है। इफ इट इज सक्सेसफुली और इफिशिएंटली रेगुलेटेड, अगर वो पहले इनिशियल स्टेज में सेग्रीगेशन हो रहा है, ई वेस्ट अलग निकाल रहे हैं, गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग, तो ही वो क्या कहेंगे लैंडफिल सेफ है। अदरवाइज जो नॉर्मल प्रैक्टिस है वहाँ तो लैंडफिल में काम करना ही नेक्स्ट टू व्हाट वी कैन से हजार्डस फॉर द हेल्थ। Then coming toward the next, that is household activity like cooking with wood, coal, or dung, or use of cleaning, production, and paints. Now, then mining operation like dust and chemical releases during the extraction, है ना। तो ये माइनिंग एक तरह से देखा जाए तो वोल्केनिक एक्टिविटीज नेचुरल हो जाती है, माइनिंग मैन मेड हो जाती है। एक और चीज मैं कहना चाहूंगी
nowadays air pollution is not related for the society, but personal exposure of the air pollution is also there. Research are going on कि पर्सनली अगर देखो, हम तो ये सिर्फ ओवरऑल बताते हैं, AQI जो हमारा जनरली आता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो आता है, वो ओवरऑल किसी सिटी का आता है। हाँ, तो पूरे सिटी के लोग इतने इतने एयर शुद्ध हवा में रह रहे हैं, बट अभी नहीं, सिर्फ वही AQI किसी भी सिटी के किसी भी पर्सन की एयर पोल्यूशन के इम्पैक्ट को डिफाइन नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल वो पर्सन कहाँ एक्सपोज है। सी, जो एक कोई भी आप हाउस होल्ड एक्टिविटी में कुकिंग अगर कोई लेडी कर रही है, तो कुकिंग से सबसे ज्यादा सल्फर ऑक्साइड्स निकलते हैं, है ना, वो सबसे ज्यादा इनहेल वही लेडी कर रही है। तो आपका AQI कितना भी हो, वो लेडी को इम्पैक्ट तो एयर पोल्यूशन जो उसके घर में हाउस होल्ड एक्टिविटीज की वजह से हो रहे वो हो गया। सेम थिंग हैपन टू द शेफ, है ना, शेफ जो होते हैं उनके लिए। और नेक्स्ट लेवल पे जो ट्रैफिक पुलिस होते हैं, जहाँ पे ट्रैफिक में सबसे ज्यादा पोल्यूशन होता है, सी एयर, वो सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड है। जो ट्रैफिक पुलिस है वो सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड है rather देन अदर पीपल। व्हाई? क्यों? क्योंकि जैसे ही आप कोई भी क्या कहेंगे, कोई भी फ्लूम निकलता है आपकी ऑटोमोबाइल से, वो इमीडिएटली एयर में डाइल्यूट होना शुरू हो जाता है। और जो आपकी व्हीकल्स है वो क्या, मूविंग सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन है ना, वो मूव कर रहा है एक पॉइंट से, कंटिन्यूअसली व्हीकल जाते जा रही है, एक पॉइंट सोर्स नहीं है उसमें, है ना, मूविंग है। बट ट्रैफिक सिग्नल ऐसा है कि जहाँ चारों तरफ से मूविंग सोर्स आके पॉइंट सोर्स बना लेते हैं, है ना। तो पर्सनल एक्सपोजर फॉर दैट पर्टिकुलर ट्रैफिक पुलिस will going to be cause the health hazard due to of high air pollution। उसका पर्सनल एक्सपोजर की वजह से उसे पर्सनली देखा जाए तो एयर पोल्यूशन को बहुत अमाउंट में झेलना पड़ता है। तो रिसर्च ऐसे चल रही है कि AQI हम सिर्फ ओवरऑल सिटी का बता सकते हैं, बट नॉट फॉर द पर्सन। नाउ द की पोल्यूटेंट्स, नेचुरल में देखो तो पर्टिकुलेट मैटर है, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड्स एंड सल्फर डाइऑक्साइड। मैनमेड में देखो तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC गैसेस, है ना, जिसकी वजह से ओजोन डिप्लीशन होता है। जनरली इट इज कमिंग फ्रॉम द मशीनरीज विच आर ट्राई टू कूल डाउन समथिंग लाइक फ्रिज, air conditioner, etc. Now the classification of pollutants। जो pollutants लास्ट लेक्चर में हमने डेफिनेशन देखी थी, जो कंट्रीब्यूट करते हैं किस चीज को लेकर, क्या कहेंगे हम लोग, जो कंट्रीब्यूट करते हैं पोल्यूशन, दैट इज नथिंग बट अ पोल्यूटेंट। प्राइमरी पोल्यूटेंट, सेकेंडरी पोल्यूटेंट। प्राइमरी पोल्यूटेंट इमिट डायरेक्टली इनटू द एटमॉस्फेयर सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड, जो डायरेक्टली सोर्स से हवा में मिक्स हो रहे हैं, दैट इज नथिंग बट प्राइमरी। और सेकेंडरी उसे कहेंगे जो कोई रिएक्शन करके या फिर एटमॉस्फेयर के दो कंपोनेंट एक साथ जुड़ के फिर कुछ नया बनाते हैं, तो उसे हम सेकेंडरी कहेंगे, है ना। फॉर्म इन द एटमॉस्फेयर थ्रू द केमिकल रिएक्शन बिटवीन प्राइमरी पोल्यूटेंट एंड अदर एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट। या तो दो प्राइमरी कंपोनेंट मिल जाएंगे, या तो प्राइमरी कंपोनेंट एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट से मिल जाएगा, फिर कुछ नया बनाएगा, जैसे इंक्लूडिंग ग्राउंड लेवल ओजोन, देन पेरोक्साइड, एसिटिल नाइट्रेट, पैन, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड मेनी मोर। ठीक है, सो सेकेंडरी पोल्यूटेंट CO and heat। प्राइमरी पोल्यूटेंट अगर देखो कहाँ से आए हैं और कर रहे हैं, कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक अच्छा सा फिगर दिया हुआ है, जनरली दे आर कमिंग फ्रॉम द ट्रांसपोर्टेशन एंड जनरली कार्बन मोनोऑक्साइड आर प्रेजेंट इनटू द हेवी अमाउंट। नाउ सोर्सेज ऑफ प्राइमरी, जो भी हमने पहले देखे सोर्सेज, कंबशन, केमिकल प्रोसेस, न्यूक्लियर ना, माइनिंग, ये सब, ठीक है। Now pollutants. Some of the secondary pollutant react with another and with other chemical to form the secondary pollutant। जैसे कि गाड़ी से कार्बन मोनोऑक्साइड निकला,
वो एटमॉस्फेयर के और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड या तो फिर सल्फर ऑक्साइड H2SO4 बना दिया है ना, H3 ये सब ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट। सल्फ्यूरिक एसिड, स्मोक, स्मॉग एक हो गया। स्मोक और फॉग को कंबाइन कर दे तो स्मॉग बनता है, SMOG, स्मॉग किससे बनता है, स्मोक और फॉग को कंबाइन कर देंगे तो, है ना, अर्बन एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी की वजह से स्मॉग बनता है, दैट इज सेकेंडरी पोल्यूटेंट। सल्फ्यूरिक एसिड इज अ सेकेंडरी पोल्यूटेंट। फोटोकेमिकल स्मोक, स्मॉग इज आल्सो सेकेंडरी पोल्यूटेंट। एंड ग्राउंड लेवल ओजोन, सी वो वाला ओजोन नहीं जहां ओजोन लेयर है अबाउ द 16 किलोमीटर ऑफ फ्रॉम द अर्थ सरफेस, दैट नॉट ग्राउंड लेवल, ग्राउंड पे जो ओजोन बन रहा है, दैट इज नथिंग but secondary pollutant. Now the metrology and transport of the air pollution. That's really what we need. Now the metrology and transport of the air pollution. See, transport जहाँ से भी pollutant emit होते हैं, first they transport, disperse and concentrate, and it will depends on the meteorological condition of the atmosphere. एटमॉस्फेयर को आपको पता है नीचे ट्रोपोस्फियर है, ट्रोपोपॉज आता है, देन स्ट्रेटोस्फियर होता है। तो जितनी भी पोल्यूशन की एक्टिविटी है वो सिर्फ ट्रोपोस्फियर में ही होगी, ठीक है। ट्रोपोस्फियर टचेस the layer of the air which touches to the earth surface, ठीक है। सो एयर पोल्यूशन साइकिल देखो, पहले इमिशन होगा एयर पोल्यूशन का किसी भी सोर्स से, फिर जैसे कि वोल्केनिक इरप्शन से इमिशन हो गया, फिर वो ट्रांसपोर्ट होगा कई दूर तक, वो जो ऐश स्मोक रहेगा वो कई दूर तक ट्रांसपोर्ट होते जाएगा, फिर डिफ्यूजन हो जाएगा और कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा एक जगह पे। जनरली वोल्केनिक इरप्शन में डिफ्यूजन होता है ना, और फिर वो वहां पे डायल्यूट हो जाएगी एयर, फाइनली वो वापस चली जाएगी अपने सोर्स के पास, इमिशन के पास में। दिस इज नथिंग बट एयर पोल्यूशन साइकिल। And sometimes nowadays it is happening that this cycle is not continue, है ना, वो साइकिल पूरी नहीं होती है, तो उस वजह से काफी ज्यादा हेल्थ हजार्ड हो रहे हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट, अगर देखो पोल्यूटेंट मूव फ्रॉम द सोर्सेज, गाड़ी चल रही है कहीं से भी इमिशन हो रहा है, हवा थोड़ी सी भी हल्की फुल्की भी चल रही है तो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, डिस्पर्शन होगा नहीं तो कॉन्सेंट्रेशन होगा। अगर हवा बिल्कुल निगेटिव लैप्स रेट में है तो वहां पे क्या होगा, स्टैग्नेंट हो जाएगी, वहां पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। अगर हवा चल रही है, विंड आपकी ब्लो हो रही है, तो फिर डिस्पर्शन होगा। डिस्पर्शन इज आल्सो डिपेंड्स ऑन टू द ट्रोपोलॉजिकल कंडीशन, मेट्रोलॉजिकल कंडीशन, प्रिवेलिंग विंड स्पीड एंड डायरेक्शन, ठीक है। अगर आप साइक्लोन में देखो तो वहां पे आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एयर पोल्यूशन ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, और वही विंड नॉर्मली ब्लो हो रही है तो वहां डिस्पर्शन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। पोल्यूटेंट डिस्पर्स ओवर geographic area, any location receive pollutant from the different sources in different amounts, not necessary। वो कहते हैं ना, न्यूज में हमने सुना भी होगा कि पंजाब से जो हवा चलती, जो खेत जलाते हैं वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड जाता है वो दिल्ली में आके रुकता है ना। पंजाब के लोगों को इतना पता नहीं चलता पर वो दिल्ली में आके रुकता है। सेम थिंग हैपनिंग, so that need to be understand, okay, how the pollutant get dispersed and predict. We need to predict the concentration, predict its volatilization at a particular location. So now the thing, there is a thing that is a prediction. ये जो चीजें हो रही है, इमिशन, ट्रांसपोर्टेशन, concentration and dispersion, that need to be predict. Okay, there are several mathematical models are available, there are several softwares are also available to predict this atmospheric pollution. Okay, उस कई सारे सॉफ्टवेयर, जैसे आजकल तो सॉफ्टवेयर ही यूज होते हैं, मैथमेटिकल मॉडल्स तो सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ना पड़ता है, बट सॉफ्टवेयर का नाम मैं बता दूं तो
कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स करके सॉफ्टवेयर है, वो उसमें सारे मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर डाल दो कि हाँ इतनी विंड स्पीड थी, इस डायरेक्शन में गई, इतनी ह्यूमिडिटी थी, इतना टेम्परेचर था, ये सब चीजें डाल दो, वो अपने आप, और इमिशन की क्वांटिटी बता दो कि पर सेकंड इतना इमिशन हो रहा है पॉइंट सोर्स से या मूविंग सोर्स से, नो मैटर, वो अपने आप आपको एक क्या दे देगा, ग्राफ बना के दे देगा कि हाँ कितना डाइल्यूशन हो रहा है या कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है. तो प्रिडिक्शन इज वेरी इजी नाउअडेज. Dispersion, general means of air motion. Okay, meteorological parameters that influence the air pollution. सबसे पहले आते हैं wind direction and speed. Then solar radiation. Indirectly temperature, or for the some kind of pollutant, solar radiation are important. That is photochemical smog, जो chemical reaction से develop होते हैं. Generally secondary pollutant. Then atmospheric stability, temperature inversion, mixing height, कितने हाइट पे पोल्यूशन हो रहा है ना, जैसे चिमनी, कोई चिमनी होती है ना, या फिर डीजी स्टैक होता है ना, जो जनरेटर होता है, डीजी जो होता है, उसका जो स्टैक इमिशन होता है वो कितने हाइट पे हो रहा है. सो देयर आर विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन एंड विंड स्पीड. जितनी ज्यादा स्पीड रहेगी उतना ज्यादा डिस्पर्जन होगा, उतना ज्यादा डायल्यूशन होगा, उतना ज्यादा अच्छा रहेगा. और डायरेक्शन जरूरी अवे फ्रॉम द पॉइंट सोर्स होनी चाहिए. And generally air flows directly from high to low pressure areas. Okay, wind circulation, rising air cools and produces the rain. तो wind circulation हमेशा हमेशा अच्छा होना चाहिए. जैसे कि sinking air is heated and become dry. तो ये सारे कई सारे पॉइंट है विंड सर्कुलेशन को रिलेटेड. आप देखो आपके इक्वेटर में, जनरली इक्वेटर के पास में क्या रहता है, लो प्रेशर, फिर हाई प्रेशर से एयर वापस क्या होती है, इक्वेटर के पास जाती है. इसलिए इक्वेटर वाली कंट्रीज ज्यादा पोल्यूटेड है एज कंपेयर टू द कंट्री विच आर अवे फ्रॉम द इक्वेटर ऑफ द अर्थ, है ना. यहाँ पे आपको डायरेक्टली फिगर में देखने के लिए मिल रहा है. सिंकिंग होता है बाउंड्रीज में, एयर सर्कुलेट होते जाती है ना. तो इस तरीके से एयर का फ्लो होता है विंड डायरेक्शन. यहाँ पर भी आप देखो सर्कुलेशन कैसे हो रहा है एयर का. नाउ इन्फ्लुएंस ऑफ ग्राउंड एंड सी. ठीक है, वाटर एब्सॉर्ब एंड ट्रांसफर द हीट डिफरेंटली देन रॉक एंड सॉइल. तो रॉक एंड सॉइल रेडिएट हीट डिफरेंटली समर टू विंटर, है ना. अलग अलग बिहेवियर पैटर्न है अर्थ के, तो वो सब इन्फ्लुएंस करते हैं एयर पोल्यूशन को. Then lapse rate. Coming to lapse rate, this is very important. Important characteristics of the atmosphere is ability to resist vertical motion, or you can say stability. हवा तो longitudinal बहती ही है, ये तो हमें पता है, but that stability जो एक आती है एयर में, वो vertical motion की वजह से आती है. Got it? So affect ability to the different pollutants. When small volume of air is displaced upward, then what happened? It encounters the lower pressure, expand to the lower temperature, assume no heat transfer and surrounding to the surrounding atmosphere, called adiabatic expansion. Hava normally, see, the lapse rate is not a normal phenomena. It is something different than the natural or normal one. ओके, यहाँ पे हवा जो है वो वर्टिकली जाती है, एनकाउंटर करती है लोअर प्रेशर को, जबकि हमने देखा है हाई प्रेशर से लो प्रेशर में आती है, बट यहाँ वर्टिकल में क्या होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाती है. एक्सपांड टू लोअर टेम्परेचर, जहाँ जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर कम होता है. स्ट्रेटोस्फीयर के डायग्राम में आपको याद होगा, है ना. कम से कम टेम्परेचर में वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपांड होने की कोशिश करती है. assume no heat transfer to the surrounding atmosphere, वहां पर वो ना हीट लेती है ना देती है, no exchange of heat. This condition is known as the adiabatic expansion. Okay, so this is a mathematical what we can say representation. I just added, but not necessary for you. Okay, adiabatic expansion मैंने तो hopefully समझा दिया है. Now the atmospheric stability is dependent on to the adiabatic
एडियाबेटिक कंडीशन। ओके, एडियाबेटिक कंडीशन कैसी है? नेचुरल है, सुपर है, सब है, नेचुरल है। जैसे 4 एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी है, न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल एडियाबेटिक है, नॉर्मली हवा ऊपर जा रही है, ठीक है। देन सुपर एडियाबेटिक अगर आप देखो तो वहां पे जो एनवायरमेंटल लैप्स रेट रहता है वो नॉर्मल से क्या रहता है, बड़ा रहता है। हवा तो ऊपर जाती है, दैट इज नोन फिनोमिना, नॉर्मल एडियाबेटिक। बट वो अगर बहुत ज्यादा लैप्स रेट में जा रही है तो उसे हम सुपर एडियाबेटिक कहेंगे, वो अनस्टेबल कंडीशन होती है। देन सब एडियाबेटिक, नॉर्मल लैप्स रेट से भी कम रेट में हवा वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रही है तो उसे हम सब एडियाबेटिक कहेंगे, वो भी स्टेबल कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर रहता है। नाउ द इन्वर्जन, inversion is completely different. It is shows the negative of the adiabatic, natural adiabatic lapse rate, और environmental lapse rate is negative, then strongly stable रहता है। यहाँ पे हवा का ना longitudinal movement होता है ना vertical movement होता है, ठीक है, एकदम स्टेबल बन जाता है। और लैप्स रेट आपका निगेटिव में चला जाता है। निगेटिव में जाना मतलब, पॉजिटिव में जाना मतलब लैप्स रेट हाँ कंटिन्यूसली ऊपर 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 जा रहा है। निगेटिव में मतलब वो ना ऊपर जा रहा है ना हॉरिजॉन्टल जा रहा है। दैट इज नथिंग, दैट टर्मिनोलॉजी इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ नेगेटिव टर्मिनोलॉजी। ओके, टेम्परेचर इंक्रीजेस विथ हाइट। जनरली स्ट्रेटोस्फियर में हाइट के साथ साथ टेम्परेचर डिक्रीज होता है, बट यहाँ पे इन्वर्जन कंडीशन में वो सब नहीं होगा। सी, इन्वर्जन कंडीशन इज फोकस टू यू because of your syllabus, design syllabus. Okay. तो इन्वर्जन के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब ध्यान में रखो। मुझे ऐसे पॉसिबिलिटी लग रही है कि ये आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। ओके, अगर आपको एडियाबेटिक समझ में आ गया है तो इन्वर्जन भी समझ में आ ही गया होगा, है ना। एडियाबेटिक वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द एयर, उसके कई सारे 4 फिनोमिनॉन हैं। एक्सपांशन टू द लोअर प्रेशर, एक्सपांशन टू द लोअर टेम्परेचर, है ना। तो ये 4 पॉइंट ऊपर ऑलरेडी एनलिस्टेड है, एक बार फिर से देख लेना पीपीटी। और उसके उल्टा इन्वर्जन में होता है, गॉट इट। टेम्परेचर इंक्रीजेस विथ हाइट, हवा का जो टेम्परेचर रहेगा वो हाइट के हिसाब से बढ़ता जाएगा, which is opposite to the normal condition. No tendency for vertical upward movement due to the temperature difference. Any parcel of the air will return to its original position. Actually, it will not get returned. It will not going to be move. ये तो theoretically हमें लिखना है और mathematically उसे present करना है। इसलिए हम लिखते हैं एनी पार्सल ऑफ द एयर रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। मतलब हवा घूम के वापस थोड़ी ना आ रही है, नहीं, वो पार्सल वहीं के वहीं है। उसका डिस्टेंस अगर हम कैलकुलेट करेंगे, जब मैथमेटिकल मॉडल डेवलप करते हैं तब वो वहां पे जीरो बताने के लिए कैसे बताएंगे। तो मूवमेंट ही नहीं हुई, ये क्या कहेंगे, एयर का मूवमेंट ही नहीं हुआ है कहीं पर भी, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है रिसर्चर के पास में, है ना। हम ऐसा बोलने के लिए बोल सकते कि हाँ एयर का कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, बट नहीं, थोड़ी तो एयर डिस्पर्स होती है बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ तो हमेशा रोटेट करी है, तो हवा भी थोड़ी ना थोड़ी घूमती ही घूमती है। इसीलिए इस चीज को हम नहीं कह सकते कि कोई पोल्यूटन एक चीज एक जगह से दूसरी जगह पे जा नहीं रहा है एयर का, या कोई पार्सल एक जगह से दूसरी जगह पर जा नहीं रहा है एयर में, जा ही रहा है। बट वहां पे हमें कैलकुलेशन के लिए जीरो कैसे दिखाएंगे, तो दैट सेंटेंस कम दैट एनी पार्सल ऑफ द एयर विल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। पार्सल इज कूलर देन द एयर एंड मूव्स बैक, कॉन्सेंट्रेट पोल्यूटेंट। यहाँ पे पोल्यूशन का सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा, ठीक है। Now the factor affecting inversion: time of the year, topography, presence of the water and lakes, and time of the day as well as. See, सुबह में क्या कहेंगे, सुबह नहीं, जनरली नॉर्मल ट्रोपोस्फियर में अगर आप देखो तो हाँ, सुबह में एटमॉस्फेयर नेगेटिव लैप्स रेट में रहता है। जनरली दिस हैपेंस इन हिली एरियाज। हिली एरिया में देखो तो वर्टिकल मूवमेंट एयर का लगभग बंद ही हो जाता है, और वहां पे फॉग स्मोक आ जाता है ना। तो वो एक इन्वर्जन कंडीशन होती है, थोड़ी देर के लिए होती है बट होती है। नाउ विंड डायरेक्शन, ऑब्वियसली मूविंग टुवर्ड्स हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जोन, टोपोग्राफी पे भी डिपेंड्स करता है।
खुली जमीन है तो वहां पे ज्यादा विंड डायरेक्शन अच्छे से मिलेगी। मिक्सिंग हाइट जनरली इट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द क्या कहेंगे, आपकी जो चिमनी होती है, स्टैक हाइट होती है, उसको कहते हैं कि हाँ हम पोल्यूशन कर तो रहे हैं पर किस हाइट पे कर रहे हैं। जैसे कि ऑटोमोबाइल्स है, वो किस हाइट पे कर रही है, ग्राउंड लेवल से ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 फीट पर। बट वही आप अगर प्लेन देखो एयरप्लेन, तो उसकी पोल्यूशन की जो हाइट रहेगी वो मोर देन 10 to 15 रहेगी। कोई स्टैक, कोई चिमनी है, उसकी हाइट देखो कितनी रहेगी। तो दैट मिक्सिंग हाइट इज ऑल्सो, जितने नीचे लेवल पे इमर्श जितने लेवल पे पोल्यूशन को इमिट किया जाएगा, जितने कम हाइट पे ग्राउंड सरफेस से, उतना ज्यादा पोल्यूशन होगा। जितने ऊपर किया जाएगा उतना पोल्यूशन कम होगा। ठीक है। Now there are several factors related to the mixing height and plume rise. जो भी चिमनी है, यहाँ पे देखो आप, स्टैक है आपका, जो चिमनी है उसका प्ल्यूम, जो वहां से इमिशन जो हो रहा है उसका जो नेचर रहेगा उसे हम प्ल्यूम कहते हैं। कितना एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में कितना बढ़ रहा है, कितना एक्सपांड हो रहा है। ठीक है। नाउ द इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन टू द ह्यूमन हेल्थ, मैंने जैसे कि पहले बताया, अस्थमा होता है ना, कैंसरस डिसीजेस होते हैं, टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं लाइक बेंजीन, फॉर्मल्डिहाइड एंड डीजल पर्टिकुलर मैटर, ये सब कार्सिनोजेनिक एजेंट्स हैं, है ना। ब्रेन प्रॉब्लम, स्ट्रेस आउट होते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई कम मिलती है, हेडेक, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी बीमारियां होती है। इरिटेशन टू द आई, नोज एंड थ्रोट, इन अदर टर्म्स दैट इज एलर्जी। तो ये सारे कई सारे इफेक्ट्स हैं एयर पोल्यूशन के ह्यूमन हेल्थ को। ठीक है, तो यहाँ ये चैप्टर खत्म होता है आपका। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज रिलेटेड टू द वाटर, माय फेवरेट टॉपिक, वाटर पोल्यूशन। ओके, बट सिलेबस कुछ ऐसा डिस्क्राइब किया है ना आपके वाटर पोल्यूशन में कि मैं बता नहीं सकती। सी क्या दिया है, characteristics of natural water, aquatic environment, sources of potable water, फिर water quality standards है, types of water pollution है ना। तो we'll see one by one. Okay, everything is covered up in my PPT, so we'll see one by one. Before that I want to take 1 minute, 2 minute gap and then we'll start. Is it okay for everyone? Okay, okay. Okay, yeah, we'll just get 2 minutes gap.
So we'll start with water pollution. Okay. Now the characteristics of natural aquatic environment or natural water. जो characteristics है 3 हिस्सों में डिवाइड की गई, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल. ठीक है. फिजिकल में आपके आगे टेम्परेचर, pH, humidity. केमिकल में आ गया dissolved, biochemical oxygen demand, chemical oxygen demand. और biological concentration of microorganism present into the water. में ठीक है. This system are split into the fresh water, like river, lakes. PPT, please, ma'am. Presentation, we can't see presentation. Is it visible? Is it visible to you? No, 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 Still not. still not. You can reshare, ma'am. And that's what I do. But still it is not visible. Let me do one No. more time. Is it visible now? We can see, yes, now visible. Yes, now. Yeah. Okay. Yeah. Right. Thank you. Thank you. So, natural water or aquatic environment. Yeah. Yes. Now the system is going to be separated into the two forms. That is a natural or fresh water, that is river, lake, and next one is a marine ecosystem, defined by the biodiversity, nutrient level, and depth of zones. See, marine में ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी दिखेगी एज कम्पेयर टू द फ्रेश इकोसिस्टम. ठीक है. न्यूट्रिएंट्स जो रहेंगे वो फ्रेश इकोसिस्टम में ज़्यादा रहेंगे एज कम्पेयर टू द मराइन में. डेप्थ जोन अगर देखा जाए तो मराइन में अनलिमिटेड ऐसा भी कह सकते हैं डेप्थ ऑफ जोन से एज कम्पेयर टू द फ्रेश वाटर्स में. ओके. बट कैरेक्टरिस्टिक्स 3 हिस्सों में डिवाइड की गई है. नेचुरल वाटर की कैरेक्टरिस्टिक्स, as I said, it is divided into 3 classes, that is physical, chemical, and biological. Physical include color of the water, taste of the water, odor of the water, turbidity, or you can say concentration of suspended solid and temperature. ठीक है. केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में आ गया pH, whether it is acidic, basic or neutral. Then hardness. Hardness मैंने पहले भी बताया था बट अभी भी बता देती हूँ. Hardness एक आम भाषा में कहा जाए तो झाग. जब हम साबुन घोलते हैं पानी में तो कितना झाग बनता है, तो वो एक तरीके से डिफाइन करते हैं हार्डनेस पे. बहुत ज्यादा झाग बन गया तो पानी काफी सॉफ्ट है, झाग नहीं बन रहा है तो हार्डनेस कॉजिंग कंपोनेंट्स है. हार्डनेस कॉजिंग कंपोनेंट क्या कोई बता सकता है? मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किए. कौन से रहते हैं? Calcium and magnesium. सॉरी. Mostly calcium salt. हाँ, मोस्टली कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट. और मोर करेक्टिव दैट इज एटम विथ multivalent covalent bond और multivalent cationic charges. जैसे कैल्शियम C++ और Ca++ है, मैग्नीशियम Mg++ है ना. तो उसमें डबल पॉजिटिव चार्ज रहता है, तो वो मोर करेक्टिव ऐसा रहता है. सिर्फ कैल्शियम और मैग्नीशियम से हार्डनेस नहीं होती, कई अदर कंपोनेंट्स है. Then dissolved solids like salts and other chlorides, nitrogen, phosphorus. So these are the chemical characteristics of the natural water. Then biological, presence of microorganisms like bacteria, algae, fungi, viruses, and whatnot, protozoa. Then component of aquatic
environment. Already we have discussed this, that is abiotic and biotic factor. Abiotic, all non-living thing onto the earth, that is nothing but abiotic factor, and biotic, which is what we can say, which is living thing onto the earth. ये already हमने discuss किया है. Abiotic factor में water flows, light penetration, oxygen level, salinity, temperature, etc. Biotic factor, all the producers, phytoplankton, then all the consumers, all the decomposers are the biotic factor. ठीक है? Then types of water. See, अलग अलग टाइप्स है पानी के. हम जो पीते हैं उसे पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर कहते हैं, साल्ट वाटर होता है, हार्ड वाटर होता है, ग्राउंड वाटर होता है, अलग अलग होते हैं. विल सी वन बाय वन. टैप वाटर supplies to the home, usually treated by the municipal corporation. और उसमें कई सारी ट्रीटमेंट होती है, कई सारी स्टेजेस होती है, प्रिलिमिनरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, इस तरीके से. तो उसमें हल्का सा अमाउंट क्लोरीन का रहता है रेसिड्यू फॉर्म में, ताकि जब पानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में सप्लाई हो रहा है और उसके बीच में कोई माइक्रोबायोलॉजी का कंटेमिनेशन, कोई माइक्रोब्स का कंटेमिनेशन हो रहा है, तो उसे किल करने के लिए क्लोरीन एक्टिव इन स्टेज में रहता है. ठीक है? टैप वाटर सभी को पता है. देन मिनरल वाटर, जो कि बॉटल्स में आते हैं, फ्री फ्रॉम एनी हार्मफुल केमिकल्स, बट इट इंक्लूड्स द essential minerals which are needed for the human body, like calcium, magnesium, and many more. Okay, then spring water, जो ऊपर से बारिश हो रही है वही स्प्रिंग वाटर है. डिस्टिल्ड वाटर, इट इज अ प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ द वाटर, only for it has a only molecular formula of H2O. जो आप बैटरीज में, कार की बैटरीज में, या फिर जो भी क्या कहते हैं, जो ड्रिप लगती है किसी पेशेंट को, डॉक्टर इंजेक्शन के लिए यूज करते हैं, वो डिस्टिल वाटर रहता है. वो प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ H2O रहता है, उसमें कोई दूसरा अदर केमिकल नहीं रहेगा. वो क्या आपका डिस्टिल वाटर. टैप वाटर इज ऑल्सो नोन एज द पोर्टेबल वाटर. ठीक है? टैप वाटर को पोर्टेबल वाटर भी कहते हैं. पोर्टेबल वाटर जो पीने लायक है, एस्थेटिकली लुकिंग गुड, फ्री, उसमें इम्प्योरिटी रहती है बट इतनी कम रहती है कि हम पी सकते हैं, है ना? ये चीज मैं आपको IS कोड की मदद से बताऊंगी. ठीक है? पोर्टेबल वाटर. प्यूरिफाइड वाटर जो घर के आरओ में लगता है उसे हम प्यूरिफाइड वाटर कहते हैं. ठीक है? अल्कलाइन वाटर जिसका pH हाईली मतलब pH हायर साइड में रहता है, मोर देन 7 रहता है, उसे हम अल्कलाइन वाटर कहेंगे. आजकल कई सारे फिल्टर आने लगे होममेड जो अल्कलाइन वाटर देते हैं, कई सारे पैकेज बॉटल आने लगे जो अल्कलाइन वाटर देते हैं. देन स्पार्कलिंग वाटर, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स दिखते हैं, वो स्पार्कलिंग वाटर रहते हैं, या तो ये नेचुरली ऐड किए जाते हैं या मैनमेड. देन वेल वाटर, जो अंडरग्राउंड कुएं से या एक्वीफर से पानी निकल जाता है, वो वेल वाटर हुआ. अब नाउ कमिंग टूवर्ड्स द पोर्टेबल वाटर. सी, ये IS कोड मैंने आपको कल भी बताया था, है ना? देखो IS कोड में क्या चीज दी गई है. एक दी गई है एक्सेप्टेबल लिमिट. इज इट विजिबल टू यू? हेलो, इज इट विजिबल टू यू? Yes, ma'am. Yes, yes. जो इंडियन स्टैंडर्ड है वो क्या कहता है? एक तो कहता है एक्सेप्टेबल लिमिट और दूसरा कहता है परमिसिबल लिमिट. एक्सेप्टेबल लिमिट मतलब पानी में कोई भी एक एग्जांपल ले लो, जैसे कि टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स है वो 500 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए, ये एक्सेप्टेबल है. पानी में उतना रहेगा चलेगा, मतलब वो पीने लायक, हम पी सकते, प्यूरेस्ट फॉर्म है. बट अब क्या करती है, इंडियन स्टैंडर्ड ने बनाया है. अब इंडियन गवर्नमेंट तो पानी को ट्रीट भी कर दी है, बट इतना कैसे ट्रीट कर देगी कि टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स जो भी रहेंगे वो 500 मिलीग्राम पर आ जाए, है ना? इतना कितना वो पानी को प्यूरिफाई कर देंगे? 500 तो वो अचीव नहीं कर सकते, पर कितना अचीव कर सकते हैं? 2000 अचीव कर सकते हैं. 2000 मिलीग्राम पर लीटर पानी को इतना ट्रीट कर सकते कि डिजॉल्व कॉन्सेंट्रेशन जो भी है, डिजॉल्व सॉलिड जितने भी है पानी में, वो कम से कम 2000 मिलीग्राम पर लीटर तक आ जाए. तो वो क्या हो गया? परमिसिबल लिमिट, है ना? पीने के लिए इतना चल जाएगा, इतने डिजॉल्व सॉलिड प्रेजेंट रहे तो इससे कोई हेल्थ हजार्ड नहीं होगा, है ना? परमिसिबल लिमिट उसे दी गई है जो हेल्थ हजार्ड ना करे. एक्सेप्टेबल लिमिट, अब डिसॉल्व सॉलिड्स तो होनी चाहिए. डिसॉल्व सॉलिड्स में आ गए आपके मिनरल्स आ गए, है ना? इंपॉर्टेंट जो भी न्यूट्रिएंट्स आ गए वो पानी में होनी चाहिए, तो इसलिए वो तो
500 to 500 मिलीग्राम तो होनी चाहिए। ऐसे ही अगर आप कोई भी दूसरा पैरामीटर उठा के देख लो, जैसे आयरन, पानी में 0.3% होना ही चाहिए, तो ही वो मिनरल और न्यूट्रिएंट रिच पानी कहलाएगा। परमिसिबल लिमिट में रिलैक्सेशन नहीं है ना। ऐसे कई सारी चीजें हैं। अब जैसे हार्डनेस देखो, हार्डनेस जो है वो पानी में 200 मिलीग्राम पर लीटर SaCO3 होनी ही चाहिए, क्योंकि उतना कैल्शियम पानी के थ्रू बॉडी को मिलना ही चाहिए। बट 6 पर गवर्नमेंट अगर वाटर ट्रीटमेंट दे रही है तो 200 तो वो अचीव कर नहीं सकती, तो वो कहती है कम से कम 600 तो होना चाहिए। थोड़ा सा 600 खजूर ऐसा खाते है थे कि पानी पी सकते हैं, है इंदाने ना। खाइतेच नाही पण थोड़ा सा खजूर का माहित आहे यस, एनी क्वेरी? नो मैम आई एम नॉट मी ओके 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 ओके, इट्स ओके। तो इस तरीके से एक्सेप्टेबल और परमिसिबल लिमिट है। ठीक है, परमिसिबल लिमिट में कई सारे पैरामीटर्स ऐसे हैं जिनको कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया है, जैसे सल्फाइड हो गया, सिल्वर हो गया, पीएच हो गया, मिनरल ऑयल होने ही नहीं चाहिए पानी में। तो ये सारी चीजें आईएस कोड में दी गई है। और एक और कॉलम आता है मेथड ऑफ टेस्ट, तो उसके लिए अलग से आईएस कोड है। एल्यूमिनियम को अगर चेक करना है पानी में कितना है, तो ये आईएस कोड दिया गया है 3025 पार्ट 55 में आराम से एक्सप्लेन किया गया है। बट ये इतना सब पूछने से रहे आपको, ठीक है। जनरली नॉर्मल 2-3 बेसिक चीजें इस आईएस कोड में से देख लेना, जैसे कि पीएच कितना होना मैम चाहिए, हार्डनेस। मैम कैन यू शेयर द स्क्रीनशॉट मैम I have already shared this IS code to you. See, ओके थैंक यू है ना। तो ये फर्स्ट पेज में ही आता है। नॉर्मली पीएच वगैरह ही पूछेंगे, टर्बिडिटी, डिसॉल्व सॉलिड्स, ये इतना ही पूछ सकते हैं, ज्यादा कुछ नहीं, है ना। और क्या पूछेंगे, सल्फ सॉरी क्लोराइड्स पूछ सकते हैं, ठीक है, विच इज इम्पोर्टेंट। फ्लोराइड्स पूछ सकते हैं, फ्लोरोसिस होता है डेंटल प्रॉब्लम, और रेसिडुअल क्लोरीन पूछ सकते हैं। ये 2-3 चीजें बस आप ध्यान में रखना, बाकी तो कुछ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है ना। और रेडियो एक्टिव 0 रहना चाहिए, ठीक है। नो रिलैक्स, नो परमिसिबल नो परमिसिबल लिमिट इज देयर, ओके। तो 2-3 चीजें अपने हिसाब से ध्यान रखना। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे या बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगी, उसके लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया गया, 0 ही रहना चाहिए उसका कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, ये ध्यान में रखना। नाउ द सोर्सेस ऑफ वाटर। तो सोर्सेस ऑफ वाटर में सबसे पहले आ गया क्लासिफिकेशन ऑफ द सोर्सेस ऑफ वाटर्स। तो पहले आ गया सरफेस सोर्सेस, जितना भी जमीन के ऊपरी पानी है वो कहेंगे सरफेस ऑफ सरफेस सोर्सेस ऑफ वाटर, लाइक रिवर, लेक, पॉन्ड, है ना, ये सब हो गए सरफेस सोर्सेस। देन सब सोर्सेस, और यू कैन से ग्राउंड वाटर सोर्सेस, जो वेल हो गए, बोरवेल हो गई, है ना, कोई कुआं हो गया, ये सब सोर्सेस ऑफ द वाटर है, ठीक है। और अंडरग्राउंड सोर्सेस ऑफ द वाटर रहे, ठीक है। सब सरफेस में जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया, रिवर, स्ट्रीम, लेक, पॉन्ड एंड इम्पॉन्डेड रिजर्वायर। ग्राउंड वाटर में होंगे स्प्रिंग्स, जो जमीन से निकल के जो आ रही है, वेल, इनफिल्ट्रेट गैलरी, इनफिल्ट्रेशन वेल्स, बोरवेल्स, या जिसे भी कहते हैं, है ना। वाटर साइकिल ऑलरेडी हमने देखा है। वाटर साइकिल के कुछ पैरामीटर्स हैं। सबसे पहले आता है इवेपोरेशन, जो भी सरफेस वाटर है, सूरज की गर्मी की वजह से वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, दैट इज नथिंग बट इवेपोरेशन। ऊपर जाता है, कंडेंसेशन होता है। इवेपोरेशन के साथ साथ ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द प्लांट्स भी हो रहा है, फिर कंडेंसेशन होके प्रेसिपिटेशन होता है, वापस रन ऑफ ग्राउंड वाटर सोर्स में वो वापस चला जाता है। ये ऑलरेडी डिस्कस किया है ना। these are the images of the surface water. Now these are the images of the groundwater sources. See, एक तो वाटर टेबल रहता है, जमीन के कुछ नीचे तक देखो तो वाटर टेबल मिलेगा, पर हम जो नॉर्मल कुआं रहता है ना, वो हम वाटर टेबल तक लेते हैं, है ना। कुछ हाइट तक खोदा और वहां पे पानी मिल गया, वो हो गया आपका वाटर टेबल। पर जो बोरवेल करते हैं वो इस वाटर टेबल में नहीं करते हम लोग। बोरवेल हम करते हैं बहुत नीचे, जब इम्परवियस स्ट्रेटा के भी नीचे अगर आपको कोई पानी मिलता है ना, एक्वीफर फॉर्म में, तो वो हो गया आपका बोरवेल। जनरली पहाड़ों से जो पानी निकल के आता है रिवर के फॉर्म में, वो यही पानी ये रहता है,
है ना, जो इम्परवियस लेयर के बीचों बीच से आता है, दैट इज नथिंग बट दैट एक्वीफर और दैट एक्वीक्लूड is a what we can say so good source of or mineral rich source of water subsurface. ठीक है, so now the guideline related that is ये मैंने बताया acceptability microbial acceptability aspect physical parameter और inorganic constituent already IS code में दिया गया है. chemical aspect में भी आप देखते हो, radio aspect आपको पूरे दिए गए हैं IS code में. ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी एस्पेक्ट अगर देखो तो 0 ही होने चाहिए. इन डेप्थ हर एक चीज आपके IS कोड में दी गई है. गाइडलाइन रिलेटेड टू द कंज्यूम ऑफ द वाटर कंजम्पशन. ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर. नाउ हाँ पहुंच गए फिर से टाइप्स ऑफ वाटर में ही पहुंच गए क्या? ओके, टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूशन. सी, जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगी, ठीक है, वैसा ही टाइप्स ऑफ पोल्यूशन रहेगा. टाइप्स ऑफ और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर पोल्यूशन रिलेटेड टू द टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल. ठीक है, ये 3 कैटेगरीज तो रहेगी ही रहेगी पानी के पोल्यूशन में. ठीक है, देन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड सेडिमेंट्स, थर्मल, chemical pollutant include heavy metal, organic compounds. Biological pollution includes pathogens, okay, which are harmful to the health. Coming to our one by one, that is a physical pollution. Physical pollution में क्या हो रहा है? Alter the physical property of water, such as temperature, color, odor, pH or clarity, or moreover turbidity. ठीक है, जैसे कि मैंने एयर में भी बताया, नॉर्मली एयर में कॉन्सेंट्रेशन तो वो उतना होता है कंस्टिट्यूएंट का, है ना, जो हमने कंपोजिशन देखे, बस वो क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज अल्टर होते हैं. सेम चीज हैपन टू द वाटर. वाटर को कलर भी है, ओडर भी है और टेम्परेचर भी है, टर्बिडिटी भी है, एवरीथिंग इज देयर, पीएच भी है, बट वो चेंज हो रहा है ना, अल्टर हो रहा है क्वालिटी वाइज एंड क्वांटिटी वाइज, which ultimately affect the human health or any individual, which is hazardous. That comes under the water pollution, है ना. फिर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया, गर्म पानी पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है हमेशा हमेशा. कलरलेस वाटर होना चाहिए, कलर इम्पार्ट हो गया थोड़ा सा भी तो फिर वो पोल्यूट हो गया. तो ये सारी चीजें. सबसे पहले आती है सस्पेंडेड सेडिमेंट्स और सस्पेंडेड सॉलिड्स. ओके, यहाँ पे आता है आपका सॉइल इरोजन या कंस्ट्रक्शन रन ऑफ से इंक्रीज टर्बिडिटी, ब्लॉकिंग लाइट फॉर द एक्वेटिक प्लांट्स. जो भी आपका सॉइल इरोजन, लैंडस्केप वगैरह से जो भी सॉइल इरोड हो रही है या कंस्ट्रक्शन रन ऑफ हो रहा है, तो वो अपने साथ क्या लाता है? पानी अकेला नहीं लाता, अपने साथ मिट्टी भी लाता है ना, डस्ट पार्टिकल्स भी लाता है. तो टर्बिडिटी बढ़ती है, लाइट पेनिट्रेट अच्छे से नहीं होती है. ठीक है, थर्मल पोल्यूशन देखो, इंडस्ट्रियल कूलिंग टावर रिड्यूसेस डिसॉल्व ऑक्सीजन एंड स्ट्रेस द एक्वेटिक लाइफ. ज्यादा गर्मी में ऑक्सीजन जो है वो पानी में मिक्स नहीं होता है. With increasing in temperature, the concentration of dissolved oxygen decreases into the water, which is very hazardous for the aquatic life, because dissolved oxygen of water is a source of oxygen to the aquatic animals as well as aquatic plants. वही एक सोर्स है, वही उनका रेस्पिरेटरी पार्ट है. हम तो हवा से सांस लेते हैं, वो तो पानी में डिसॉल्व ऑक्सीजन के फॉर्म में, और उसका ही कॉन्सेंट्रेशन कम हो तो वहां पे कोई लाइफ बचेगी ही नहीं, है ना. सो दिस इज द थिंग. Now coming to our next, that is the radioactive waste. Mining nuclear power plants releases harmful radiation into the water bodies. पहले से और अभी तक न्यूक्लियर पावर प्लांट सिर्फ वाटर बॉडीज में ही कंटेमिनेशन करते थे, पर अब भी ऐसा हो रहा है कि वो हवा में भी कर रहे हैं. माइनिंग माइनिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ कंटेमिनेशन ऑफ सरफेस एज वेल एज अंडरग्राउंड वाटर. माइनिंग की वजह से सब सरफेस सोर्स भी कंटेमिनेटेड होता है. Now the chemical pollutant like inorganic and organic components. First of all, inorganic pollutant, mining, industrial and agricultural, fertilizer
added salts, heavy metals, and mineral acids to the water. Now, organic pollutant like pesticides, detergents, petroleum, waste from the industries, okay, that contribute pollutant to the water. इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट जनरली जो इंडस्ट्री क्या कहेंगे मिनरल बेस है या माइनिंग बेस है वहां से आते हैं. ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स वहां से आएंगे जहाँ पे कुछ तो ऑर्गेनिक चीज से बन रहा है, जैसे पेपर इंडस्ट्री हो गई, टैनरी इंडस्ट्री, डेयरी इंडस्ट्री और ऑयल इंडस्ट्री. दैट इज नथिंग बट अ ऑर्गेनिक. दिस इंडस्ट्री contribute the organic pollutants to the water. Then nutrient pollution, that excess the phosphorus and nitrogen from fertilizer or sewage lead to eutrophication and ozone depletion. Eutrophication, yesterday I told you, that is the algal bloom. It also known as the algal bloom. जहाँ पे algae का bloom होता है वो eutrophication होता है. ठीक है, वहाँ पे eutrophication होता है और ऑक्सीजन डिसॉल्व ऑक्सीजन का वहाँ पे concentration कम हो जाता है ना, और न्यूट्रिएंट बढ़ जाते हैं, phosphorus and nitrogen. Now, biological pollutants, introduction of microorganism to the water, that is nothing but a biological pollution like pathogens or algal bloom. Pathogens में आगे disease causing bacteria, viruses and protozoa from the human or animal waste causes waterborne diseases. See, ये जो पैथोजन का कंट्रीब्यूशन होता है वो ह्यूमन वेस्ट के वजह से ही होता है. कहीं आम नेचुरल पानी में आपको कभी भी पैथोजेंस नहीं मिलेंगे. ठीक है. Then algal bloom triggered by nutrient overloading causes fish kill and toxins. ये phenomena मैंने कल भी बताया था. Now the sources of pollution. Point sources or movable sources, or you can say non-point sources. Point sources जैसे कि कोई नाला है वो कंटिन्यूअसली एक ही जगह पे रिवर में वेस्ट वाटर डाल रहा है ना, तो वो एक पॉइंट हो गया. वो नाला फिक्स है, उसकी पोजीशन फिक्स है, वो यहाँ पर हलेगा नहीं. रिवर भले ही बह रही है पर रिवर का पॉइंट, पोल्यूशन का पॉइंट सोर्स वही हुआ, वो पर्टिकुलर नाला है ना. सो डायरेक्टली इन फिटेबल सोर्स लाइक सीवेज पाइप्स और फैक्ट्री ड्रेन पाइपलाइन, दैट आर द point sources. Non-point sources that diffuses scatter sources from agriculture runoff, mining and stormwater. Moreover, सबसे ज्यादा non-point source में runoff ही आएगा. बारिश का पानी कितना बह रहा है कितना नहीं. ठीक है. Sorry. Now the effect of water pollution. क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं? तो ह्यूमन हेल्थ हजार्ड होता है, ये सब हमने देखे थे. वाटर बॉर्न डिसीजेस लाइक कोलेरा, टाइफाइड, कैंसर्स फ्रॉम द कंटामिनेटेड वाटर. Ecosystem destruction is also happening due to the water pollution, like destruction of biodiversity, depletion of dissolved oxygen, and dispersion of the food chains. है ना, फूड चेन में भी अगर कोई वाटर पोल्यूशन का कंटेमिनेशन आ गया तो वो कंटिन्यू रहेगा, वो कभी ब्रेकआउट नहीं होगा. जैसे कि अभी हम प्लास्टिक वेस्ट देख रहे हैं ना, ह्यूमन बॉडी के ब्लड में भी हमें प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि एक बार वो फूड चेन में आ गया तो वो कहीं हिलने वाला नहीं है, वो हमेशा परमानेंट फूड चेन में ही रहेगा. बिकॉज इट्स अ साइकिल. There are producer, there are consumer, there are decomposer. Decomposer cannot decompose the microplastics. Okay. So वो वापस कंटिन्यू हो जाएगा, वापस प्लांट में कंज्यूम होगा, वापस फिर उसे कोई हर्बीवरस खाएगा, फिर उसे कार्निवरस खाएगा, फिर कार्निवरस मरेगा, डिकम्पोजर, वापस फूड चेन कंटिन्यू हो जाएगी. वंस फूड चेन गेट कंटेमिनेटेड, it is next to impossible to reverse it. Okay. Now, biomagnification, non-biodegradable toxins accumulate in a higher concentration up the food chain. That is nothing but. Now coming towards the wastewater. अब तक हमने देखा पानी, अब हम देखेंगे गंदा पानी. ठीक है. टर्मिनोलॉजी बहुत अच्छी है. Wastewater. See, every individual, every human being needs 135 to 145 liters per day. Okay. फिर उसमें सभी आ गए, ड्रिंकिंग, बाथिंग, फ्लशिंग, वॉशिंग, ट्रैवलिंग एंड ईच एंड एवरीथिंग. ठीक है, इतना पानी एक आम आदमी को लगता ही है, 135 से 145 लीटर दिन में, एक दिन में.
और जितना भी पानी एक इंडिविजुअल यूज कर रहा है, एक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग, उसका 75 to 85% वेस्ट वाटर बनाता है वो, है ना। यूज सिर्फ वो 35 to 25% ही कर रहा है, सॉरी 25 to 15% ही कर रहा है। वाटर हम कितना भी पानी ले लें हमारी बॉडी में, सिर्फ वो 15 से 25% ही कंज्यूम होगा, बाकी सारा वेस्ट वाटर बन जाएगा, है ना। तो सोर्स ऑफ वेस्ट वाटर, यू नो इट, it is completely what we can say anthropogenic और man-made। जो रन ऑफ है, सरफेस रन ऑफ, वो जो स्टॉर्म वाटर रन ऑफ है, वो वेस्ट वाटर नहीं कहलाता है, ठीक है। water that has been affected or contaminated by the human activity in any ways, that is nothing but a waste water. It includes substances such as human waste, food scrap, oil scrap, है ना, oil, soaps, chemicals, etc. There are different sources, domestic and non-domestic. Domestic मतलब domestic waste water जो आपके घरों से आता है, नॉन डोमेस्टिक और यू कैन से इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, वो आपकी इंडस्ट्री से आता है। यहाँ पे देखो फ्लो डायग्राम में काफी अच्छे से बताया गया है। वेस्ट वाटर के 3 क्लासेस है, डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, स्टॉर्म वाटर। स्टॉर्म वाटर जो बारिश का रन ऑफ हो जा रहा है, वो इंडस्ट्री से जो आ रहा है वो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर हो गया। डोमेस्टिक में 2 तरह के हो गए, एक ब्लैक वाटर, एक ग्रे वाटर। ग्रे वाटर में आपका आता है बाथरूम, लॉन्ड्री और किचन का। ब्लैक वाटर में आता है यूरिन और फिसिस का, ठीक है। सो ये 2 टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, ग्रे वाटर एंड ब्लैक वाटर। ग्रे वाटर में कौन से आ गए, बाथरूम, लॉन्ड्री और किचन का, बट ब्लैक वाटर में यूरिन और feces. Okay, this terminology is important. Now the composition of wastewater, it includes organic matter, nutrients, sand, suspended solids, salt, stone, heavy metals, pathogen and what not. एक बार सोचो, अभी तो हम काफी अच्छा वेल डेवलप कंडीशन में रह रहे हैं इंडिया में, कि जहाँ पे सारे के सारे सीवर अंडरग्राउंड है। एक टाइम था, आज से 20-25 साल पहले, बड़े शहरों में तो नहीं पर छोटे शहरों में ओपन ड्रेन्स रहते हैं, ओपन ड्रेन्स रहते थे, नाला जिसे बोलते थे। आज भी शहरों में अगर आप देखो तो ओपन नाला तो होता ही है, सीवर भले ही क्लोज है पर नाला तो रहता ही है ना, रिवर कोई नाला बन जाता है। तो क्या नहीं है उस नाले में के पानी में, कौन सा ऐसा चीज जो नहीं है, ये आप पूछो। सभी चीजें हैं, ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, कुछ भी, कोई ऐसी चीज नहीं है जो नहीं मिलेगी नाले में, सभी चीजें हैं। तो वेस्ट वाटर का कंपोजिशन आप देखो तो बहुत डीप है, पर फिर भी कुछ चीजें हैं, जैसे ऑर्गेनिक मैटर के कंस्टिट्यूएंट में रहते हैं शुगर, प्रोटीन, फैट्स, ओके, लेफ्ट ओवर फूड्स एंड पार्टिकल्स, fecal matter, these are the suspended matters in the sewage. Now generalized wastewater composition, it includes 99.9% of water and 0.1% of the material, or you can say solids, ठीक है। वेस्ट वाटर में सिर्फ 1% ही सॉलिड रहता है, बाकी सब पानी रहता है। जब ह्यूमन बॉडी 135 से 145 लीटर, सपोज 145 लीटर कंज्यूम कर रही है ना, और उसका समझो 20% वो यूजफुल में ला रही है, मतलब 45 लीटर, तो 100 लीटर तो बह ही रहा है ना, गंदा पानी बन ही रहा है 100 लीटर। 100 लीटर में सॉलिड्स कितने होंगे, 0.1%, है ना। उसमें भी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, इसका बाइफर्केशन दिया गया है, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बट फिर भी फॉर योर नॉलेज। नाउ द इम्पैक्ट ऑफ अनट्रीटेड सीवेज डिस्चार्ज, अगर इस गंदे पानी को साफ नहीं किया जाए तो बहुत सारी पहले तो बीमारियां होंगी, ठीक है, डायरिया, वोमिटिंग, टाइफाइड एंड व्हाट नॉट, हेपेटाइटिस, ओके। नेक्स्ट यूट्रोफिकेशन होगा, नेक्स्ट कार्बन इमिशन, ओजोन डिप्लीशन एंड डेड फिश, मराइन एक्वेटिक लाइफ ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी अगर इस पानी को ट्रीट नहीं किया गया तो। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन द treatment of sewage. Now the purpose of the wastewater treatment. क्या purpose होगा? To spreading up the natural purification process, reduces bio-oxygen demand. Bio-oxygen demand, ऐसा amount of oxygen needed by the microorganism to degrade the organic constituent. Okay, that is nothing but a biological or biochemical oxygen demand. Protecting public health, recycling and recovering
prevention eutrophication, remove pathogenic organism. These are the major purposes to treat the wastewater. ठीक है, यूट्रोफिकेशन भी रोकना है, पैथोजन के ऑर्गेनिज्म को रिमूव भी करना है, रिसाइकल और रिकवर भी करना है वेस्ट वाटर को, पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करना है और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी रिड्यूस करनी है उसकी। तो ये सारे goals हो गए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को। नाउ द वेस्ट वाटर इज आल्सो कैटेगराइज्ड इन द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज कैटेगराइज्ड इनटू द 4 ग्रुप्स: प्रिलिमिनरी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ट्रीटमेंट। ठीक है, डिटेल में देखो तो कोई भी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट रहेगी, जो सबसे बड़ा कचरा है उसे साफ करो, जो सस्पेंडेड है, फ्लोटिंग मटेरियल, रैक पीसेस, वुडन पीसेस, हेयर एंड ऑल द स्टफ। देन प्राइमरी ट्रीटमेंट में उससे छोटे पार्टिकल्स लाइक सैंड, ग्रीट, वो सब। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में अब जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको ट्रीट करो, है ना, बायोलॉजिकल मीन्स। और देन टर्शरी ट्रीटमेंट, अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बचे उनको ट्रीट करो। तो ये साइजेस वाइज ट्रीटमेंट है, सबसे पहले बड़े से लेके छोटे तक, फ्रॉम हायर टू लोअर साइज वी आर रिमूविंग, और वी आर रिमूविंग द पोल्यूटेंट्स फ्रॉम द वेस्ट वाटर। नाउ हैवी मेटल कंटेमिनेशन इन द वाटर बॉडीज। जब आप देखो कोई पहाड़ ऐसा होता है जिसमें बहुत रिच हैवी मेटल्स होते हैं, आसाम के पास में आर्सेनिक की खदान है ना, वहां से जो पानी आता है उसमें आर्सेनिक प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हैवी मेटल्स का कंटेमिनेशन होता है। हैवी मेटल्स लाइक लीड, कॉपर, मर्क्यूरी, कैडमियम, आर्सेनिक एंड मेनी मोर्स। सी हैवी मेटल्स पीरियोडिक चार्ट में आपको दिए गए हैं कौन कौन से हैवी मेटल्स है। ये सब क्या करते हैं, बायोअक्यूमुलेट होते हैं, कई सारे डिसीजेस होते हैं हैवी मेटल्स से। ये केस स्टडी है चाइना में, लीड का ओवर कंजम्पशन होने की वजह से आदमी के हाथों को क्या हुआ था। ठीक है, लीड कार्सिनोजेनिक एजेंट है। ठीक है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट अगर आप देखो, लीड, कैडमियम, मर्क्यूरी एंड आर्सेनिक आर द कार्सिनोजेनिक, नर्वस ब्रेकडाउन करते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन नहीं होने देते हैं, लीड किडनी को भी डैमेज करती है, नर्वस ब्रेकडाउन आर्सेनिक का होता है। यहाँ पे एक आदमी है आसाम का ही जिसको अफेक्ट किया गया है आर्सेनिक ने, है ना। कैडमियम, कैडमियम के काफी सारे हेल्थ हजार्ड्स है, बोन, लीवर, किडनी सबको डैमेज कर सकता है कैडमियम। मर्क्यूरी सबसे पहले तीत को डैमेज करती है, देन नर्वस सिस्टम को, है ना। तो ये सारे कई सारे केस स्टडीज हैं। ठीक है, पेस्टिसाइड्स हैं। पेस्टिसाइड्स आपको पता है, पेस्ट को किल करने के लिए जो भी हम ड्रग बनाते हैं दैट इज नथिंग बट पेस्टिसाइड्स, वो भी बहुत डेंजरस होते हैं। यहाँ पे कई सारे डिफरेंट डिफरेंट पेस्टिसाइड्स है, डिफरेंट डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए, है ना। तो फूड की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, बट वो अफेक्ट करता है। सबसे पहले तो ह्यूमन के स्किन कांटेक्ट में आते हैं, जो पेस्टिसाइड खेत में स्प्रे कर रहा है उसके इनहेल हो जाता है डस्ट उसके स्प्रे, तो रेस्पिरेटरी क्या कहते हैं उससे ट्रैक डैमेज होता है, लंग्स को पे असर पहुंचा है, इंजेक्शन हो जाता है। हेल्थ इम्पैक्ट अगर देखो तो पेस्टिसाइड्स के कंजम्पशन से सबसे ज्यादा रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है वो ज्यादा अफेक्ट होता है। देयर आर डिफरेंट हार्मफुल इफेक्ट फ्रॉम द पेस्टिसाइड, ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, कैंसरस, ट्यूमरस, है ना, फिश और एनिमल्स के लिए, reproductive inhibition or failure. There are several impacts of the pesticides. Now the pollution due to oils. See, oil contains many toxic component. Okay, ऑयल का मैंने बताया था उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पानी से कम है, तो वो ऑब्वियसली पानी के ऊपर रहेगा। पानी के ऊपर रहेगा तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन डिसॉल्व नहीं होगा पानी में, और ऑब्वियसली वहाँ का एक्वेटिक एंड लाइफ जो है वो ऑलमोस्ट खत्म के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ऑयल डेंजरस है, और टॉक्सिक केमिकल्स भी मिल जाएंगे पानी में। देन डिटर्जेंट, सेम थिंग हैपन। अगर डिटर्जेंट कोई स्प्रेड हो रहा है तो वो क्या करेगा, एक ऊपर लेयर फॉर्म कर देगा और सबसे पहले हार्डनेस बनाएगा, सॉरी हो गया,
सबसे पहले क्या होगा, डिटर्जेंट की वजह से हार्डनेस हो जाएगा, पानी सॉरी हार्डनेस खत्म हो जाएगी, न्यूट्रिएंट वहां पे खत्म हो जाएंगे, डिजॉल्व साल्ट्स जो पानी में प्रेजेंट है वो खत्म हो जाएंगे, वो वहां पे ऑक्सीजन को डिजॉल्व नहीं होने देगा। ठीक है, और अपना जो केमिकल कंपाउंड है जो कि डिटर्जेंट बनाते हैं, लाइम सोडा है ना, सोडा ऐश, तो ये सब वो कॉन्सेंट्रेशन वहां पे पानी में ज्यादा होगा, और ऐसा पानी पियेंगे तो फिर क्या हो जाएंगे, और ज्यादा डिसीजेस हो जाएंगे, है ना, पॉइजनस होता है ना, कैंसर होता है। आप देखो, हम बर्तन वाली को बोलते हैं कि डिटर्जेंट अच्छे से निकालो, नहीं तो इससे कैंसर हो जाएगा। तो डिटर्जेंट्स are highly toxic. Now, pollution cycle in the environment, water, land, air. See, pollutants are interconnected. Pollutants in the air, soil and water. क्या होता है, जब एयर के पर्टिकुलर मैटर से वो सॉइल में आते हैं, सॉइल के वापस पानी में जाते हैं बिकॉज ऑफ रन ऑफ, फिर वापस स्लज इंसिनरेट होता है, वापस एयर में जाते हैं, सेम साइकिल हैपेंस। ओके, एयर का गैस वॉशिंग होता है, वाटर में जाता है, स्लज डिपोजिशन होता है, सॉइल में जाता है, सॉइल से फिर इमिशन होता है, फिर एयर में जाता है। सो एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। ओके, एयर, वाटर एंड सॉइल, ये डायग्राम आप याद रखना। और पोल्यूशन साइकिल के 3 ही फैक्टर है, एयर, सॉइल और वाटर, बीच में कॉन्सेंट्रेटेड होता है पोल्यूशन। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपका यूनिट 4th भी खत्म होता है ना। इज देयर एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस? हेलो, नहीं It's मैम, okay, नहीं मैम, ma'am. नहीं नहीं, ओके मैम। है ना, तो यहाँ पे आपका यूनिट 4th खत्म हो गया है। आई गेस मैंने सारी पीपीटीज आपको दे दी है ना, यूनिट 5 तक। Yes, ma'am. एक रिक्वेस्ट थी मैम. कौन सी रिपीट? हेलो. हाँ जी जी जी। मैडम, आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है 7 बजे से, ओहो तो 1 आवर अर्ली स्टार्ट कर सकते हैं क्या? नहीं, मैंने तो एक्चुअली हम ग्रुप में लोग ज्वाइन पोस्ट हो कर दिया जाएंगे था। और हम मैच में रहेंगे, और मैच नहीं तो एक, तो इंडिया हाँ पाकिस्तान का है. हाँ जी, हेलो जी विश्वनाथ जी, एक काम करते हाँ. हैं, नो वरी, हम्म, ये जो इतना भी लेक्चर है वो रिकॉर्ड होता है, ठीक है, हाँ. और यूट्यूब पे अवेलेबल भी हो जाएगा। अगर आपका एनी हाउ एनी चांस लेक्चर मिस हो जाता है तो नो वरी अबाउट इट, क्योंकि एक्चुअली मैंने स्केड्यूल कर दिया है ना ये, तो फिर बाकी स्टूडेंट्स, फिर मैं किसे क्या कहूँ, ऐसा हो जाएगा, तो नो वरी, ओके. आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना। मैम आप नो, वी चाहें आर तो नॉट आप फिर गेटिंग से, रिकॉर्डेड लेक्चर्स. हाँ रिकॉर्ड लेसन नहीं आ रहा है मैम। will मैम आप make चाहें तो, I'll make sure that provision will going to be नहीं प्रोविजन मैम, हो जाए रिकॉर्डेड मैम लेक्चर का। मैं अब भी मैम बात कर लेती हूँ, कल मैम का एक भी बार नहीं अगर आप मिला होगा चाहें, शायद, मैं बात करती हूँ कदम सर No, से, ऑलरेडी only रिकॉर्डिंग है। only one. We got only one lecture recorded ओके, till date. रिकॉर्डिंग तो होता है, मुझे दिखाता है रिकॉर्डिंग हो रहा है, पर Yeah. वो We can see also. है ना, But तो वो Pratik, रिकॉर्डिंग कहीं ना कहीं तो होगी ही हमारे इजेड क्लास में स्पेसिफिकली। तो मैं देखती हूँ वो कैसे हमें मिले रिकॉर्डिंग, है ना, और मैं कदम सर को कहती हूँ कि yeah, अब तक जितने भी रिकॉर्डेड लेक्चर है वो प्लीज आपको yeah. सर्कुलेट करें, Pratik ठीक है। have मैम to आप share it. चाहें, Pratik have और to share it. आज तो का मैम, तो पक्के से होगा ही होगा रिकॉर्ड, ठीक है, आज का Yes, पक्के yes, से yes. शेयर किया जाएगा। हाँ जी, मैम बोलिए अगर आप आप किस चाहें चीज की। तो 7 बजे वाला लेक्चर फिर से रीशेड्यूल भी कर सकते हैं, हम लोग को एक्सेप्टेबल रहेगा मैम। आप लिख दीजिए ड्यू टू इंडिया पाकिस्तान में 7 बजे वाला लेक्चर इज 6 o'clock, हम लोग आ जाएंगे अटेंड करने के लिए। ऐसे, हाँ मैम, यस मैम, अगर आप चाहें तो, अगर आप फ्री हो तो। ठीक है, ठीक है, डन डन, मैं 6 बजे कर देती हूँ। सब सहमत हैं जितने भी प्रेजेंट है यहाँ पर? यस यस मैम, नो मैम, इश्यूज मैम। यूनिट 5 का आप जरा शेयर कर दीजिए, यूनिट 1 2 3 4 ही शेयर हुआ है। अच्छा, 5th का नहीं हुआ है ना? नहीं, 5th और ठीक है, 6th। 5th and 6th, 6 तो ये लीजिए, मैं अपनी ग्रुप पे शेयर कर देती हूँ, बाद में फिर मेरे भी दिमाग से निकल जाएगा। ओके, एनी क्वेरी रिलेटेड? मैम मैं एक ड्यूरिंग क्वेश्चन बैंक रेफर कर रहा था, देयर इज समथिंग कॉल्ड फाइटोप्लैंक्टन्स। हाँ, आई गेस ये शायद वाटर पोल्यूशन से रिलेवेंट टॉपिक है। देखिए, फाइकोप्लैंक्टन्स जो है, वो आपका, एक सेकंड ना, मैं अपलोड कर दूँ ये,
वो नॉट रिलेटेड टू द वाटर, मतलब सिर्फ आपका वाटर पोल्यूशन में भी नहीं आएगा, आपके माइक्रोबायोलॉजी में भी आया है, मैंने कवर अप किया है आई गेस। फाइटोप्लैंक्टन मैंने यूनिट शायद 6 में किया हो, एक बार प्लीज रेफर कर लेना, वहां पे डिटेल्स में मिल जाएगा व्हाट इज द मैकेनिज्म एंड व्हाट इज द थिंग, है ना। एक बार यूनिट 6 आप देख लीजिएगा, है ना। That microbiology little bit difficult to us. This हाँ, chemistry, okay. माइक्रोबायोलॉजी इसलिए मैं कह रही हूँ कि माइक्रोबायोलॉजी थोड़ी सी, और केमिस्ट्री तो भी थोड़ी इजी आपके सिलेबस में, मुझे नहीं लगा था इतनी इजी रहेगी, बट इजी है। सो डोंट वरी, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बैंक ही रेफर करो। जो एमसीक्यू और- दिया है मैडम वो रेफर किया तो चलेगा। हाँ, मुझे कदम सर ने ऐसा कहा था, और क्या लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, बट कदम सर ने ऐसा कहा था कि how I can say this. See, examination will be easy for you. Everything is going to be manageable. So don't worry about it. Okay, Kadam sir have told me. Okay. Hopefully you will understand the phenomena. But still question bank को refer करो, और maximally हम उम्मीद करते हैं कि उसी में से question आए. Okay. Okay. Anything Okay. else? So don't worry. I'll reschedule the today's class due to India-Pakistan match. Don't worry. I'll take from 6 o'clock. Okay, done? Okay, done, ma'am. Okay. Thank you. Okay, any query? No. No, ma'am. Thank you. Okay. Then bye. Thank you. Bye. We'll meet Thank at you. 6 Thank o'clock. you. Okay. Thank Yeah. you.